Good evening, children. Welcome to the second part of atoms and molecules. Without getting late, let's get started. इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में, लाइक रिमेंबरिंग द symbols and remembering the configuration and their valencies and all the 20 elements in their atomic number sequence. I hope everyone has remembered that. If not, please do it as quick as possible. और इस बार हम उसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं. So the topic which I will start is molecules of elements. The heading is given as molecules of elements. हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या समझते हैं? सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मीन्स it will represent the independent existence in the room temperature. This is the first point. Second point, the molecules can be of one atom or even more. Examples: sodium, it is a metal, right? And the molecule of sodium also represents one atom. So it has one atom. It is the representation of sodium molecule, which is in solid state. Hydrogen. Hydrogen is naturally found in the form of gas in nature. So it has two atoms of hydrogen combined to exist independently in the atmosphere by the name of hydrogen gas. So this represents one molecule of hydrogen gas. I'm talking about elements. We will get back to the compounds later. Similarly, let us take an example of oxygen. Now, oxygen is also, this O2 represents one molecule of oxygen that may contain two number of atoms, but it is representing one molecule of oxygen. Okay? So there are several gases in the atmosphere. There are several, you can say, elements that they are also represented by molecules. Some elements, they are not present in the state of molecule because of their hyperreactivity, but naturally you will find many substances, the elements which are completely made up of, which are independent in the form of molecules. Coming back to the molecules of compounds. Molecules of compounds. इसमें क्या होता है? कंपाउंड का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, ठीक है, कंपाउंड कोई भी हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का कंपाउंड हो, तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. इसको मैं थोड़ा करता हूं ऊपर, आ जाओ भैया, बराबर.
तो सोडियम वाटर का फॉर्मूला होता है क्या? H2O। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl। ठीक है, वैसे बहुत सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दिस NaCl रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ sodium chloride. Similarly, two hydrogen and one oxygen, they combined together to form one molecule of water. तो molecular mass भी होगा। molecular mass क्या होगा? 18U। सोडियम क्लोराइड का कितना होगा? 23 plus 35, that is 58.5 molecular mass। 23 is of sodium। सब याद रखना पड़ता भाई, सब याद रखना पड़ेगा। एंड सिमिलरली क्लोरीन का है 35, so when you add it you get 58.5, that is the molecular mass of sodium chloride। Coming to the chemical formulae section, don't worry about the notes, you will get it soon। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है भाई कि अलग अलग प्रकार के आयंस होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन में अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। हम अभी इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं अबाउट, सबसे पहला चीज आयंस क्या होते हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। आयंस, आयोनिक कंपाउंड, पॉलीएटमिक आयंस एंड देयर वैलेंसीज। ये तीन सेक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, व्हाट आर आयंस। हम पिछले सेक्शन में ये पढ़े थे, व्हाट आर आयंस। आयंस आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स formed by either donating or accepting electrons। आयंस क्या होते हैं? वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि आइदर डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से वो आयंस बनते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 + 8 + 1। Now when it loses one electrons, it attains the stability factor, the 8 factor, the you can say nearest noble gas configuration factor। मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है? हमेशा उनका आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 रहेगा। यू स्टार्ट विथ ऑल द नोबल गैसेस। हीलियम हैज 2, देन यू हैव क्लोरीन, नियॉन, then argon, then krypton. These are all noble gases, inert gases, non-reactive gases. So they have this stable electronic configuration which doesn't let them react with other substances. Okay, so when I talk about 281, 281 has this one electron which is in the outermost shell. वो क्या करता है? It has a tendency to donate electrons. तो जैसे ही ये डोनेट करता है, Na loses one electron and forms Na+. Similarly, क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17, द कॉन्फ़िगरेशन इज 2 + 8 + 7।
सो इट हैज आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन का ये टेंडेंसी होता है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करे टू मेक द नियरेस्ट क्लोरीन माइनस आयन। दिस इज ऑल्सो आयन। तो नियरेस्ट हो गया नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्लोराइड आयन, और ऊपर में बन गया क्या? सोडियम आयन। So this is the formation of ions. How do they become ions? तो उस हिसाब से I do have a popular list of different types of ions, may it be positive or negative. You can see that in page number 37 of your textbook. So there are so many popular ions which you can see. एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस हैविंग सिंबल्स एंड वैलेंसीज, एवरीथिंग इज गिवन। लेट अस चेंज द पेज। आयंस पॉजिटिव एंड हियर कम्स द नेगेटिव आयंस। ठीक है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फर्स्ट पॉपुलर है पोटेशियम, इट इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल एवर। पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, सिल्वर का है सिंबल Ag, कॉपर, ये आते हैं +1 चार्ज वाले। K का भी प्लस, Na का भी प्लस, Ag भी प्लस और Cu भी प्लस। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉपर। सेकेंड वैलेंसीज में क्या आता है? दिस इज द फर्स्ट वैलेंसीज। सिमिलरली नेगेटिव में कौन कौन से आते हैं? क्लोराइड, ठीक है, देन कम्स ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब है -1 वैलेंसी वाले। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, दिस ऑल कम्स इन द फर्स्ट कैटेगरी, -1 वैलेंसी। सेकेंड आते हैं +2 वाले। +2 में सबसे पॉपुलर मैग्नीशियम, then comes calcium, then comes zinc, then comes iron, and then comes copper. These are the popular second valency ions. सबका क्या रहेगा? +2। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वो दोनों वो लूज कर देते हैं, इसलिए वो +2 हो जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो वो माइनस वैलेंसी होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो प्लस वैलेंसी होगा। ठीक है, सो दिस आर द Mg+2, Ca+2, जिंक +2, आयरन +2, कॉपर +2। ठीक है, ये है सेकेंड वैलेंसी वाले। सिमिलरली नेगेटिव आयंस में सेकेंड वैलेंसी कौन कौन से रहते हैं? -2। -2 में क्या क्या रहेगा? ऑक्साइड, सल्फाइड, उसके बाद में कार्बनेट, ठीक है, कार्बनेट, उसके बाद में सल्फाइट, देन सल्फेट। अब आप बोलोगे सर सल्फाइट और सल्फेट में क्या फर्क है? भाई एक ऑक्सीजन एटम का फर्क है, बट दो अलग अलग सब्सटेंस है, दिस आर नॉट सेम। सल्फाइट इज नॉट सल्फेट, दोज टू आर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कार्बनेट, सल्फाइड, दिस इज सल्फाइड, SULPHIDE, दिस इज कार्बनेट। दिस इज सल्फाइट, SULPHITE, and this is SULPHATE.
Okay, this is sulfate, that is sulfite, this is carbonate, this is sulfide, ऊपर है ऑक्साइड. माइनस नेगेटिव वैलेंसी में एक और आता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रेट. ठीक है, नाइट्रेट इज ऑल्सो एंड बाइकार्बोनेट HCO3 minus. These are also coming under the -1 category ions. -2 में आया ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट. ठीक है. थर्ड आता है भैया 3 वैलेंसी. 3 वैलेंसी में सबसे पॉपुलर है एल्यूमिनियम. ठीक है. और -3 में आता है क्या? नाइट्राइड. ठीक है. और फॉस्फेट PO4 3-. इसे हम कहते हैं नाइट्राइड. आई होप दैट इज विजिबल टू यू. इसे कहते हैं क्या? नाइट्राइड. और उसके नीचे है फॉस्फेट. दैट इज वेरी कॉमन. दिस आर ऑल कॉमन आयंस. और ये आप लोगों को याद रखना काफी जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड्स. ठीक है. राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले का पहला स्टेप ये है दैट यू शुड नो द वैलेंसी, सिंबल एंड चार्ज ऑफ डिफरेंट आयंस. तभी जाके हम कंपाउंड बना पाएंगे. अगर आप ये याद नहीं रख पाएंगे तो हम कंपाउंड नहीं बना पाएंगे. तो एक बार और रिवाइज करते हैं. This is potassium with valency +1. Next comes sodium, again +1. Next comes silver. Silver का भी +1. This is known as cuprous. +1 वैलेंसी वाला कॉपर को बोलते हैं cuprous. This is magnesium. This is calcium. Zn comes for zinc. काफी कॉमन. नेक्स्ट कम्स आयरन. और ये है क्यूप्रिक. क्यूप्रिक मतलब कॉपर. कॉपर का क्यूप्रिक और क्यूप्रस दोनों है. क्यों है ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. दैट विल बी टॉट टू यू इन 11th and 12th. How the transition elements which are in the middle of the periodic table, how they have multiple valencies, वो हम higher classes में पढ़ेंगे eventually. ठीक है. तो फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है that copper 2+ is the most common copper. जैसे कॉपर सल्फेट, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कॉपर का कौन सा वैलेंसी होगा. सर 1 होगा या 2 होगा. नहीं, हमेशा 2 ही होगा. The common copper compounds contain the copper of valency 2 only. This is just for your extra knowledge. I explained this cuprous. ठीक है. थर्ड वैलेंसी में आता है आपका एल्यूमिनियम. सिमिलरली नेगेटिव वैलेंसीज में अगर आप देखेंगे, दिस इज क्लोराइड, दिस इज ब्रोमाइड, दिस इज आयोडाइड. सिंबल याद रखेंगे I- Br-, ऐसे याद रखेंगे तो इजी रहेगा. Cl-, तो क्लोराइड का ये है -1 वैलेंसी. तो आयोडाइड. और ये है हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड के बारे में तो आपको पता ही होगा. जितने भी बेसिस अल्कोहल हैं उन सब का हाइड्रोक्साइड रहता है, एंड दैट इज -1. सेकेंड पार्ट इज नाइट्रेट, एंड दिस इज बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट काफी लंबा रहता है. दैट्स व्हाई आई प्रिफर दैट यू मे से बाइकार्बोनेट. ठीक है. सो दिस इज द बाइकार्बोनेट हैविंग द वैलेंसी -1. चार्ज इज -1. ठीक है. नेक्स्ट कम्स सल्फाइड.
ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, और थर्ड वैलेंसी में -3 आता है नाइट्राइड एंड फॉस्फेट. आई होप दिस लिस्ट you will remember because it is very very important. Moving on to the next section कि हम भाई केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे. देखिए, केमिकल फॉर्मूला बनाना काफी इजी है. हवा में बना सकते हैं आप. कैसे? आप बोलेंगे कि सर केमिकल फॉर्मूला बनाना हैज़ बीन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एंड आई हैव हर्ड मैनी स्टूडेंट्स कि सर केमिकल फॉर्मूला बनाना डिफिकल्ट है. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. इससे पिछले क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि आप सिस्टमैटिकली अगर सब कुछ करेंगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा. मैथ्स जैसा सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं रहा तो फिर केमिस्ट्री क्या है. सो राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, स्टेप नंबर 1. पहला स्टेप, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला का पहला स्टेप. राइट डाउन द सिंबल्स of the elements present in the compound. Suppose I want to make a chemical formula of aluminium sulfate. Suppose this is the compound जिसका मेरे को केमिकल फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहला मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई साहब इसमें 2 आयंस मुझे क्लियरली दिख रहे हैं. सबसे पहला है एल्यूमिनियम और दूसरा है सल्फेट. ये तो आपको याद रखना जरूरी है कि भैया SO4 इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट और SO4 इज द सिंबल रिप्रेजेंटिंग सल्फेट एंड एल्यूमिनियम इज द सिंबल रिप्रेजेंटिंग Al रिप्रेजेंटिंग एल्यूमिनियम. ये अपने को याद रखना जरूरी है सबसे पहले. ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1. स्टेप 2, राइट देयर चार्ज ऑन द rightmost अपर सुपरस्क्रिप्ट. मतलब एल्यूमिनियम के साइड में हमने क्या लिखना है, उसका चार्ज. तो एल्यूमिनियम का है +3 और सल्फेट का है -2. लिख दिया. थर्ड, स्टेप 3, while making the chemical formula, you need to crisscross the charges. तो हम उसको क्या करेंगे, +3 जो है वो आ जाएगा सल्फेट के नीचे और -2 जो है वो आ जाएगा कहाँ, एल्यूमिनियम के नीचे. ओके, सो how will be the formula look like? Al2SO4 3. Al2SO4 3. This is the formula of aluminium sulfate. I hope that is clear to you कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है.
तो उस बेसिस में हम बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे अगर मैंने आपको कुछ बोला कि नहीं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बताइए या सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताइए या कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बताइए या हाइड्रोजन क्लोराइड का बताइए या हाइड्रोजन सल्फाइड का बताइए, बता सकते हैं आप. यू जस्ट नीड टू क्रिस क्रॉस देयर चार्जेस. दिस +3 विल कम एज अ ब्रैकेट हियर because already there is 4, so it will be represented in bracket, and this -2 has become the subscript of aluminium. So the charges are crisscrossed. तो crisscross जब हुआ तब इधर का चार्ज उधर, उधर का चार्ज इधर, बन गया एक कंपाउंड. Okay, so now let us move on to the next section, which is about molecular mass. Molecular mass में होता क्या है? Molecular mass is the mass of a molecule. तो वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है. ठीक है, तो अब यहां पर पूछा जा रहा है कि सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट में हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट में जैसे किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक यू कैन से ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होगा कितना? 16U into 2, that is 32U, because there are 2 atoms in one molecule, so the mass will be 32U. Similarly, in case of CO2, which is not of element, it is of a compound. तो compound होने से क्या होगा? All the individual masses of atoms, like कार्बन का है 12U plus ऑक्सीजन का है 16 into 2U. How much it will be? 12 plus 32U, which is 44U. This is the molecular mass of carbon dioxide. इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को जोड़कर हम एक मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं that this is one molecule of the following compound. ठीक है. In the next class we will be discussing about some question answers and I will be giving some solution to the chapter, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. Till then, please subscribe the channel, and thank you for all the views which made my day on my first video. This is the second video, and I hope I will be helpful for all the students, all my lovely students, and those who don't know me, my name is Abhinandan sir, and I'm a member of the chemistry department of Wiser Academy. Please do like and comment your valuable comments. If any suggestions is required, please do join us and subscribe our channel, and I'll be keeping posting videos, and we will be covering all the chapters of science, chemistry, and let us see how beautiful this journey goes. So take care. Thank you.